So, good evening, everyone. Now we are recording this meeting. So, let's start with today's session. I have written session number 15. Okay. We are here again after a long holiday, that is, after Diwali vacation. So, I'll directly go to the. Okay. This is our session number 14 actually, but PPT is session number 14, but the continuation is number 15 only because we had taken the class on I think 10th of November, but due to very few population बहुत कम लोग थे इसलिए we cancelled that class and 18 was at holiday, and so today we are meeting. So let's start with this. In today's session, what we are going to cover? We are going to cover one more tense, that is perfect past tense. Then we'll take few exercises on this, and as I told you before, we'll give you one topic and you have to speak about that, but we'll change the sequence now. Okay, हम लोग क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस बदलेंगे. आज आपको पहले टॉपिक पे बोलना है. एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मी असं का करते, कारण हा मी तुम्हाला मागचं जे सेशन होतं आपलं 10 तारखेचं, सॉरी 11 तारखेचं, त्या सेशन मध्ये मी तुम्हाला हे प्रिपेयर करायला सांगितलेलं. ठीक है, मैंने आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए बोला था, जो किसी ने भी होमवर्क भी नहीं भेजा है. तो आज हम लोग पहले वो टॉपिक पे बात करेंगे एंड देन मैं आपको वो जो अपना पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. ओके, सो दिस वाज द टॉपिक गिवन टू यू अर्लियर, माय प्लान्स फॉर दिवाली सेलिब्रेशन, बिकॉज दिवाली आने वाली थी और इसीलिए हम लोगों ने ये सब एक टॉपिक दिया हुआ. तो आई होप के यू हैड प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक अर्लियर and now you have to talk on that topic. Okay, and here I have given the sequence also. So first name है सुषमा मैडम, please switch on your mic, and everybody please listen carefully. You don't have to worry के अभी मेरा नंबर आएगा, क्या बोलना है, whatever. अभी दिवाळी तो हो चुकी है, दिवाळी ऑलरेडी झालेली आहे, त्यामुळे तुम्ही दिवाळी कशी सेलिब्रेट केली हे बोललात तरीही चालणार आहे. ओके, यू कैन सिंपली, ये प्लान्स बनाए थे हम लोगों ने दिवाली के लिए, अभी दिवाली हो चुकी है तो कैसे सेलिब्रेट किया वो भी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो डोंट टेक टेंशन, ये क्लास ही हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया है कि आपको बोलने की प्रैक्टिस मिल सके इंग्लिश. ओके, सो we'll start now with Sushma madam. Please switch on your mic. और यही सीक्वेंस रहेगा. Good evening, all. Diwali Yes, please. celebration. Uh, we Please take your time and whatever comes to your mind, just you have to speak in English. There is no issue. Okay, just try it. Everybody start preparing, please.
तुम्ही दिवाळीमध्ये काय काय केलं ते फक्त तुम्हाला इंग्लिश मध्ये बोलायचं आहे. ओके, आणि मी हेल्प करणार, त्यामुळे प्लीज स्टार्ट करा. we are celebrated Diwali at home. हम्म. We make rangoli. आता सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट दिवाळी ऑलरेडी होऊन गेलेली आहे. ओके, इट इज अ पास्ट इव्हेंट, सो यू हॅव टू say your all the sentences in past form. Okay, past tense. मग मी नंतर बोलू का? ओके, आता सिक्वेन्सेस बघूया आपण. सेकंड आहे प्रतीक्षा. प्रतीक्षा, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. Pratiksha, we'll check Pratiksha is in class or not. No, she is not there. She has left. Maybe some network problem. So next number is Patil sir. Today Patil sir is also not there. Varsha madam is there. Varsha madam, please switch on your mic. Yes, madam. Please talk about this given topic. Okay. On Diwali, we went our village. Hmm. We celebrated Diwali with our family. Hmm. I made different types of sweets like chakli, ladu, chivda, shankarpali. Hmm. I burned firecrackers with my children. Hmm. मॅडम एवढं झालं ऍक्च्युली मला फार टाइम नाही भेटलं ते. Yeah, it's okay. No problem. No problem. ठीक है? No problem. ओके. Then Menoka madam, is Menoka madam there? We'll check. Today she is also not there. Gute sir is not there. Meenakshi madam, चला माईक चालू करा तुमचा. मीनाक्षी बुपी, हाँ बोला. Hello, ma'am. हाँ बोला. Diwali is one of the biggest festival in India. Hmm. We celebrated from Dhanteras to Bhav. Good. We make uh, menu, very menus, laddu, chakli, and very very dishes. Hmm. We celebrated. Yes, we celebrated. तुमचा आवाज कट होतोय. If you are finished, please let us know. We celebrated with my family. अजून काही बोलायचं आहे का? Hello. हाँ बोला बोला. तुमच्या बॅकग्राऊंडला आवाज होतोय. We celebrated with हम्म. blasting crackers
with my child. ओके, अजून काय केलं एवढंच तुम्ही? झालं मॅम. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. देन ठाकूर सर इज ऑल्सो नॉट देअर. स्वाती मॅडम, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. हाँ मैडम. Yes, please. How did you celebrate your Diwali? Please let us know. Diwali is my favorite festival. Hmm. Diwali biggest festival. Hmm. I light up in my house and school. Hmm. House and school with diyas. Small diyas made school Hmm. children Made by. made by Huh. small diyas made by school Hmm. children. Hmm. I made in my home ladu, chakli, karanji. Hmm. एवढंच मॅडम. Okay, ठीक आहे, no problem. Thank you. थँक्यू Then प्रतिभा मॅडम, प्रतिभा मॅडम आहेत का बघूया. प्रतिभा मॅडम इज नॉट देअर आणि बाकीचे लोक पण इन एंड आउट होता है. बरनाली मैडम, प्लीज स्विच ऑन योर माइक और बताइए हमें आपने कैसे सेलिब्रेट किया दिवाली. Diwali is a religious festival in my country. हम्म. Uh, it was celebrated more for religious purpose हम्म. and excitement. However, a few people who celebrated Diwali have not the finest idea of what was all about. हम्म. They just go in for entertainment. हम्म. This festival was celebrated with lamps, candles, and fireworks. हम्म. It, it was an occasion of great beauty of lamps, हम्म. candles, and crackers are हम्म. to be seen very well. Sky rockets are fired, and most of the houses are decorated with blinking neon lights. Good. Okay, done. Yes, ma'am. Okay, good. Then Namita madam, please switch on your mic. Good evening, all of you. Good evening. Diwali is the festival of light. Hmm. Light, we are lighting up the small. We call it in Marathi Pandi. Hmm. Everywhere in Diwali, we are we we are celebrating Diwali without cracker. Last Very good. Hmm. without cracker last 32 years of age. I celebrating Diwali without crackers, Good. and my son's 10 years of age. 10 years of age, he can't a single cracker light up. Good. Madam, thank Very you. good. Very good. Anything else you want to say, madam? No, madam. Thank you. Okay, thank you so much. So we'll see if any other candidate has joined and if they want to say something. And then, okay, Minoka madam is there. Minoka madam, please switch on your mic and let us know how did you celebrated your Diwali. Yes, madam. Yes, बोलिए. Okay, ma'am. Okay. Diwali. For plan for celebrating a Diwali. So earlier I have written as in future tense, madam. So now Yes, I have yes, put because in. yeah, no problem. You can explain your plan because we had already given it as a
future for Yes, ma'am. yeah, in future tense only. Yes, madam. So Yes. at that time, I am making in future tense only, madam. Okay, Yes, ma'am. yes. I So will you without can that. you can tell us that also. No problem. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Yeah. Okay, ma'am. Good evening to everybody. Hmm. Really, I'm very excited to plan for Diwali. So I have planned for the Diwali. So this, first of all, I will decorate with diyas and light with my house. My house with the diyas and lights. After that, Yes. I will be preparing many sweet dishes and invite our neighbors for enjoying the Diwali. Hmm. I will have planned for the singing, dancings with my daughter and with Hmm. our neighbors. So it will be very Hmm. excited for us on the special occasion that Diwali celebration. Diwali is the Hmm. festival of life. Everybody knows that it's a really an exciting celebrations for decorating our houses and others neighbors are coming and with a enjoyable moment at the time when we are lightening the diyas. Thank you, Hmm. ma'am. Okay. Very good. Thank you so much, madam. And we'll see. Thank you. Yeah. Nobody else has joined. So we'll go to our PPT again. Okay. So as everybody said that Diwali is festival of lights and you all have enjoyed it. So the most liked thing, matlab, what I liked is, see, everybody enjoyed the fireworks and all, but even me at our house, we never burned firecrackers. Okay, because it leads to air pollution, and now the corona period is going on and we need fresh air. So it's a small step that we are following, like Namita madam said that she is following it for last 30 or 32 years. Her 10-year-old son is also not using those fireworks and all. So I'm really impressed to listen that, and will request to all of you that now this Diwali has gone, but from next year, please don't burn firecrackers. Okay. So thank you so much. Maybe many of your, some of your kids must have been making the forts, like in our area, in Maharashtra, it is what you call, it is a tradition to make forts in Diwali so that we remember Shivaji Maharaj and his forts. So many kids in their veranda or in their some ground, they make small forts in Diwali. Even at our place, whenever the children, till last year, the children came to our place and they made a different small forts. But this year, due to Corona, we couldn't enjoy that. So now it's good that you all have enjoyed Diwali nicely. We'll go to our topic, teaching topic. Today's topic is perfect past tense. ठीक आहे. In last session we have seen perfect present tense. म्हणजे काय बघितलेलं आपण? पूर्ण वर्तमान काळ. आज आपण बघणार आहोत पूर्ण भूतकाळ. मतलब क्या है कि जिसमें पास्ट में ही कोई भी एकादी घटना पूरी हो चुकी है और उसके आगे एक दूसरी घटना शुरू हो चुकी है. मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. सी, लिसन केयरफुली. The past perfect tense is a verb tense used to talk about actions that were completed before some point in the past. म्हणजेच काय? भूतकाळातच एखाद्या वेळेत ही गोष्ट पूर्ण झाली होती आणि त्याच्यानंतर पुढे अजून एक गोष्ट घडली होती. ओके.
एक चीज कंप्लीट हो चुकी थी और उसके साथ ही दूसरी चीज शुरू हो गई, वो भी पूरी हो गई, मतलब दोनों चीजें पास्ट में ही हुई है। तो जो पहले हुई वो क्या है, वो परफेक्ट पास्ट है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस दिए हैं। शी हैड गॉन टू कर्नाटका, अभी यहाँ पे एक ही सेंटेंस दिया है। मैं आपको जब एग्जाम्पल्स दूंगी तो फॉलोइंग सेंटेंसेस है, मतलब एक और उसके बाद दूसरा, तो आपको वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वी हैड गॉन टू कर्नाटका, सॉरी शी हैड गॉन टू कर्नाटका, वो कर्नाटका गई थी। वी हैव बीन टू लक्षद्वीप ट्वाइस, वी हैड चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। वी हैड बीन टू लक्षद्वीप ट्वाइस, मतलब हम लोग लक्षद्वीप में 2 बार गए थे। ठीक है, अभी फॉर्मूला देखिए क्या है इस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट नंतर तुम्हाला आठवत असेल प्रेझेंट परफेक्ट टेंस मध्ये आपण हॅव आणि हॅज वापरला होता। ठीक है, आई और वी के साथ हैव यूज किया था, और ही शी इट के साथ हम लोगों ने हैज यूज किया था। तो अभी हैव और हैज का क्या हुआ है, हैड। परफेक्ट में अगर आप जाते हो पास्ट परफेक्ट में, तो हैव और हैज का हैड हो चुका है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 इज व्हाट, V3 इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म है अभी। जैसे यहाँ पे मैंने गॉन लिखा है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में शी हैड गॉन टू कर्नाटका, तो गॉन क्या है, गो का थर्ड फॉर्म है। हम लोग एक बार, आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं आपको बोर्ड पे बता देती हूँ। देखिए, गो इज द फर्स्ट फॉर्म, इसका पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट। और उसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो हम लोग जब भी परफेक्ट टेंस में, वेदर इट इज अ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, जब भी परफेक्ट टेंस में हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हमेशा याद रखना है। आप सिंपल पास्ट में जब बनाते हो तो हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अभी हम लोग थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर मेकिंग सेंटेंसेस इन परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो दैट इज पास्ट पार्टिसिपल और उसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए आई के साथ हैड लिखा हुआ है, ही शी इट के साथ भी हैड है, यू वी दे के साथ भी हैड है। मतलब म्हणजे काय करायचं आपल्याला, सगळ्या सब्जेक्ट सोबत जेव्हा तुम्ही परफेक्ट पास्ट टेन्स मध्ये वाक्य बनवता तेव्हा सगळ्यांसोबत हॅड वापरायचं आहे। हे सेकंड सेंटेन्स मी तुम्हाला सांगितलंय, टायपिंग मिस्टेक राहिली आहे तिथे, वी हैव झालंय, ते हॅडच असणार आहे। ओके, वी हैड बीन। अभी देखिए इसका जो स्टेटमेंट है उसका यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर डिनर, मतलब मेरा डिनर तो हो चुका है लेकिन डिनर के पहले ही मेरा होमवर्क भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक आहे, म्हणजे एक आता मी बघा दोन सिच्युएशन आहेत, डिनर झालंय आणि डिनरच्या आधी होमवर्क कंप्लीट झालंय। तो जो पहले सिचुएशन कंप्लीट हुई है, मतलब एक फॉलोइंग एक सिचुएशन दी है, उसके आगे ही दूसरी सिचुएशन कंप्लीट होती है। ये जब आपको बताना है तो आपको कौन सा टेन्स यूज करना है, परफेक्ट पास्ट टेन्स। ओके, निगेटिव्ह कसं करणार आहोत, सेम फॉर्म्युला वापरणार, फक्त हॅड नंतर नॉट वापरणार आहोत। ठीक है, निगेटिव्ह करते वक्त हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल दैट इज V3 और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आई लिखा है मैंने, हैड नॉट वैसे लिखेंगे। अभी V3 इज, यहाँ पे ईट लिखा है, देखो ईट का क्या होता है, ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म यूज किया है. आई हैड, अभी मैं आपका सेंटेंस पढ़ती हूँ. आई हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट फॉर मेनी डेज व्हेन आई वॉज इन अमेरिका. क्या लिखा है? जब मैं अमेरिका में था. आई वॉज है, ठीक है, तो ये भी पास्ट टेंस है लेकिन सिंपल है. व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था तो बहुत दिनों तक मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया था. ठीक है. देन अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो सिंपल. क्वेश्चन में क्या होता है? दो टाइप्स हम लोगों ने देखे थे. एक येस नो टाइप होता है और एक WH क्वेश्चन होता है. मग येस नो टाइप मध्ये काय होतं? येस नो टाइप मध्ये क्वेश्चन विचारताना आपण काय करतो? हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैड. तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देना है. ठीक है. हैड यू विजिटेड राजस्थान इन चाइल्डहुड? अभी यहाँ पे भी देखो, क्या आपने राजस्थान को विजिट किया था? कब? चाइल्डहुड में, मतलब जब आप बहुत छोटे थे, बचपन में. म्हणजे तुम्ही अगदी लहान असताना तुम्ही राजस्थानला गेला होतात का? म्हणजे खूप जुनी गोष्ट विचारली गेली. आता तुम्ही मोठे झालात असा याचा अर्थ आहे. देन WH मध्ये पण काय करायचं बघा. स्टार्टिंग में WH और फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. वेयर हैड शी गॉन लास्ट ईयर? यहाँ पे भी देखो, लास्ट ईयर मतलब वो भी कंप्लीट हो चुका है और उसके पहले वो कहाँ गई थी. वेयर हैड शी गॉन लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर पिछले साल वो कहाँ गई थी. वो जाके आ भी चुकी है. ठीक है. उसका जाना मतलब उसकी वो जो क्रिया थी वो कंप्लीट हो चुकी है. तो यहाँ पे फिर से देखिए, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज टू टॉक. अभी ये ध्यान में रखिए, टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वेर कंप्लीटेड बिफोर सम टाइम इन द पास्ट. पास्ट में ही किसी टाइम से पहले वो पूरी हो चुकी. ठीक आहे. भूतकाळातच एका दिलेल्या वेळेच्या आधी ती गोष्ट पूर्ण झालेली आहे, ती घटना पूर्ण झालेली आहे, घडलेली आहे. अशा घटनेसाठी आपण परफेक्ट पास्ट टेन्स वापरतो. थोडस कॉम्प्लिकेटेड वाटेल तुम्हाला की मी दोन दोन घटना का सांगते, पण तुम्हाला अगदी डिटेल मध्ये गेल्यावर क्लियर होईल हे. अभी उसका यूज देखते हैं, यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस. तो अभी आपको एक एक करके पढ़ना है इसको. ठीक है. तो देखते हैं कौन कौन प्रेजेंट है, तो मैं आपको पढ़ने के लिए बोल देती हूँ. ओके. सुषमा कांबळे हैज रेज द हैंड. डाउट आहे का तुम्हाला काही? शी हैज लेफ्ट ऑल्सो. इथे जे नवीन फीचर आलेलं आहे, सो मेनी पीपल हॅव रेज द हँड. हे जे नवीन फीचर आहे तुमच्या इथे, ते जर तुम्हाला, Madam, I want to ask हा something. प्लीज. Madam, madam, you have told there is a mistake. I can't understand which mistake you told. Okay. Okay. See, here I have written the two examples I have given to you. First is she had gone to Karnataka. तर आपण जेव्हा परफेक्ट पास्ट टेन्स वापरणार तेव्हा आपल्याला सगळीकडे कुठल्याही, इथे बघा, आय सोबत, ही शी इट सोबत, यू वी दे सोबत, सगळ्यांसोबत आपल्याला हॅडच वापरायचंय. ओके. पण इथे काय झालंय, मी एडिट केलेलं आहे. परफेक्ट प्रेझेंट टेन्सच वाक्य मी उचलून इथे एडिट केलेलं, पण त्याच्यामध्ये मी हॅड टाकायला विसरले, त्याच्याऐवजी हॅवच राहिलंय ते. तर ती स्पेलिंग मिस्टेक होती. ओके. वी हॅव बीन लिहिलंय ना मी सेकंड मध्ये, बघा, वी हॅव बीन टू लक्षद्वीप ट्वाइस. आता ते हॅव नाही पाहिजे, तिथे हॅड पाहिजे. वी हॅड बीन टू लक्षद्वीप ट्वाइस. ओके, कळलं? Okay, madam. ओके, थँक्यू. ठीक है. तो चलो
आपण काम करूया, परत एकदा चेक करूया. एक खालून जाते मी आता. स्वाती मॅडम माईक चालू करा. हा केला मॅडम. हा, हे जे लिहिलेलं आहे मी युजिंग पास्ट परफेक्ट टेन्स, त्याच्या खाली ब्ल्यू लाईन जी असणार आहे तो तुमचा यूज हा आहे आणि त्याच्या खाली 2 सेंटेन्सेस दिलेले आहेत, एक्झाम्पल्स. तर तुम्ही हा एक ब्ल्यू लाईन आणि 2 एक्झाम्पल्स वाचायचे. हा. टू शो दॅट ॲन ॲक्शन हम्म, happened हम्म, before something else in the past. हम्म, She stayed up all night because she had received bad news. हम्म, They lost many of the game हम्म. because they had not partic- प्रॅक्टिस practiced इनफ. enough. ओके, थैंक यू मैडम. बघा, विल डू वन थिंग कि आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे और मैं एक एक एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट जैसे अभी स्वाति मैडम ने पढ़ा है, देखिए, टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट. मतलब जो मैंने पहले आपको बोला था कि पास्ट में म्हणजे भूतकाळामध्ये एखाद्या गोष्टीच्या आधी एक गोष्ट घडलेली आहे. ओके, जसं एक्झाम्पल बघा, शी स्टेड अप ऑल नाईट बिकॉज शी हॅड रिसीव्ड बॅड न्यूज. शी स्टेड अप ऑल नाईट म्हणजे ती थांबली, पूर्ण रात्रभर थांबली. हे काय झालं, सिंपल पास्ट टेन्स झालं. पण का थांबली त्याचं कारण बघा काय आहे, बिकॉज शी हॅड रिसिव्ड बॅड न्यूज. हॅड रिसिव्ड म्हणजे ती थांबली कारण तिला त्याच्या आधी एक वाईट बातमी कळाली होती. ओके, म्हणजे आधीच घडलेलं आहे बघा. सेकंड देखिए, दे लॉस्ट मेनी ऑफ द गेम्स बिकॉज दे हॅड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ. अभी हारे, वो बहुत सारे गेम्स हारे. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी पहले. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है. टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट. पास्ट में 2 एक्शन सिक्वेंसली हो चुकी है. ओके, वो भी आएगा आगे. तो अभी सेकंड वाला, सुषमा मैडम चला माइक चालू करा, वाचा. To show that an action happened before a specific time in the past. हम्म, She had established for company before 2008. हम्म. I had fallen asleep before 8 o'clock. ओके, थँक्यू. बघा, आता सेकंड आपल्याला दिलंय की तुम्ही पास्ट परफेक्ट टेन्स कधी वापरू शकता, कब यूज कर सकते हैं. टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम. आपको अभी एक टाइम दिया गया है पास्ट में. अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, शी हैड एस्टैब्लिश्ड हर कंपनी बिफोर 2008. अभी हम लोग 2020 में हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 2008 से पहले ही उसने अपनी कंपनी एस्टॅब्लिश करली थी. ठीक है, त्यांनी आपली कंपनी स्थापन केली होती. आई हैड फॉलन अस्लीप बिफोर 8 o'clock. मैं 8 बजे से पहले ही सो गई या सो गया. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया है और उससे पहले ही जो भी क्रिया या घटना है वो कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, देन इसी से रिलेटेड है. तो और कौन है, नमिता मैडम वाचा या ब्लू लाइन्स. Past perfect tense makes it clear that one thing happened before another in the past. The order of event does not matter since the tense makes it clear which event happened first. येस, थँक्यू. बघा, आता इथे काय लिहिलेलं आहे, पास्ट परफेक्ट टेन्स मेक इट क्लियर दैट वन थिंग हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट. मैंने जैसे आपको बोला, 2 चीजें घट रही है, एक उससे दूसरे से पहले एक हो रही है. लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड कंटिन्यूस सेंटेंस क्या है, द ऑर्डर ऑफ इवेंट डज नॉट मैटर. कौन सी सिचुएशन या कौन सी क्रिया पहले हुई है, कौन सी घटना पहले घटी है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता. क्यों? क्योंकि
द टेंस मेक्स इट क्लियर विच इवेंट हैपन फर्स्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले में आते हैं हम लोग। शी स्टेड अप ऑल नाइट, मैंने आपको बोला ये क्या है, सिंपल पास्ट में है। और बिकॉज के बाद का जो सेंटेंस है वो क्या है, शी हैड रिसीव्ड बैड न्यूज। तो हैड आया है, रिसीव्ड लिखा है, तो आपको पता है कि शी हैड रिसीव्ड बैड न्यूज, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। और उसके पहले वाला शी स्टेड अप ऑल नाइट, ये क्या है, सिंपल पास्ट है। तो यही दिया है कि ऑर्डर कौन सा कहाँ लिखा है वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दो सेंटेंस दिए हैं, अगर एक के बाद एक, तो कौन सा सेंटेंस पहले हो चुका है या कौन सी क्रिया पहली हो चुकी है वो आप उसके टेंस से पता लगा सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट वन कौन है, मेनका मैडम, प्लीज रीड दिस वन नाउ। Okay, ma'am. ऊपर वाला। Another use of past perfect tense include reported speech. हम्म, Example of this use include the teacher asks if we had studied for the exam. हम्म, My neighbors asked if we had seen her dog. हाँ, थैंक यू मैडम। देखिए, Past perfect tense. हाँ नहीं Okay, मैडम, ma'am. बस बस उतना ही, थैंक यू। अभी देखिए, आप लोगों ने स्कूल में कॉलेज में इंग्लिश ग्रामर में आप सभी लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा होगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको पता है, जरा चैट बॉक्स में लिखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कभी सुना हुआ है इंग्लिश ग्रामर में, यस और नो लिखिए सिर्फ। यस, ओके, यस। कितने लोगों ने सुना है देखते हैं, दो ही लोगों ने सुना है। ओके चलो, फटाफट लिया। चार लोगों ने ही सुना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये हम लोग भी पढ़ेंगे बाद में, उतना डीप में नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे अगर अभी बात कर रही हूँ, भले ऑनलाइन है, बट हम जब एक दूसरे से आमने सामने बात करते हैं वो है आपका डायरेक्ट स्पीच, ठीक आहे। आपण एकमेकांशी जेव्हा समोरासमोर बोलतो तेव्हा आपण त्याला म्हणतात डायरेक्ट स्पीच। आणि दुसरा आहे रिपोर्टेड किंवा इनडायरेक्ट, म्हणजे एखाद्याने काय सांगितलं ते तुम्ही दुसऱ्याला सांगताय, ठीक है, त्याला म्हणतात रिपोर्टेड स्पीच। मतलब किसी और ने क्या बोला था वो हम लोग बात करते वक्त एक दूसरे को बता रहे हैं, तो वो है रिपोर्टेड स्पीच। और उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे है, द टीचर आस्क्ड इफ वी हैड स्टडीड फॉर द एग्जाम। टीचर ने पूछा क्या हम लोगों ने एग्जाम की पढ़ाई की थी, हैड स्टडीड, ध्यान में रखिए। माय नेबर आस्क्ड इफ वी हैड सीन हर डॉग। मेरे आमचे जे शेजारी आहेत त्यांनी विचारलं की मी त्यांचा कुत्रा पाहिला होता का। वी हॅड, आम्ही, आम्ही आहे, ओके सॉरी मी नाही। इफ वी हॅड सीन हर डॉग, हे रिपोर्टेड स्पीच मध्ये वापरतात। आता अजून एक यूज बघूया आपण, कोण आहे बघूया नेक्स्ट। नलावडे मॅडम, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक। यस, रीड दिस वन। मॅडम तुमचा आवाज खूप लो आहे, चेक करा जरा माइक। हाँ बोला।
also be used to show dissatisfaction with the past. Example of this use include we wish we had purchased the winning ticket. I wish I had told the truth. ओके, थँक्यू सो मच. बघा, माईक बंद करा. मॅडम ऐकूच येत नाही तुमचा आवाज. माझा आवाज येत नाहीये का? नाही तुमचा येतो ते मॅडम. हा, नाही ठीक आहे. आता माईक बंद करा सगळ्यांनी. त्यांचा काहीतरी बहुतेक नेटवर्कचा इश्यू असेल, पण मला पोहोचला आवाज. थोडा लो होता, बट मला क्लिअरली ऐकायला आलं. ओके, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, बघा. पास्ट परफेक्ट टेन्स कॅन ऑल्सो बी यूज टू शो डिससॅटिस्फॅक्शन विथ द पास्ट. डिससॅटिस्फॅक्शन म्हणजे काय? डिससॅटिस्फॅक्शन म्हणजे एखाद्या गोष्टीत आपल्याला समाधान नाही वाटलं, आपल्या मनासारखी नाही झाली. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. वी विश्ड वी हैड परचेज द विनिंग टिकट. मतलब कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसको भी आप परफेक्ट पास्ट टेंस में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो. देखिए, वी विश्ड वी हैड परचेज द विनिंग टिकट. हम लोगों ने इच्छा की. क्या इच्छा की? कि शायद हम लोग विनिंग टिकट, मतलब शायद ये लॉटरी के टिकट के बारे में वगैरह बात कर रहे हैं. जो जीतने वाला टिकट है वो हम लोगों ने खरीदा होता तो क्या होता. ऐसे जब बात करते हैं तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. आई विश्ड आई हैड टोल्ड द ट्रुथ. मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सच बोल देता तो अच्छा होता. आय विश्ड आय हॅड टोल्ड द ट्रुथ म्हणजे मी खरं बोललो असतो तर बरं झालं असतं, किंवा मला असं वाटतंय की मी खरं बोलायला हवं होतं. ओके, देन नेक्स्ट, मतलब ये ध्यान में रखिए कि कोई भी कंप्लीट नहीं हुई है इच्छा, तो उसके लिए ये यूज किया है. देन आगे देखते हैं कौन है. गुठे सर, प्लीज हे रीड करा. मॅडम मी ट्रॅव्हलिंग मध्ये आहे. ओके सर, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही ऐका, चालेल. नो प्रॉब्लेम. या, चालेल. मीनाक्षी मॅडम माईक चालू करा. Yes. हा, प्लीज रीड दिस. Past perfect tense can also be used with the word just when. This makes it clear that the event was only a short time prior. प्रायर. One. She had just left the sense सीन. when the scene when the ambulance arrived. The bus had just left when we got to the stop. ओके, थँक्यू सो मच. बघा, आता मी एक्सप्लेन करते. पास्ट परफेक्ट टेन्स कॅन ऑल्सो बी यूज विथ द वर्ड जस्ट. म्हणजे आपण बोलतो ना आत्ताच, अभी अभी, ऐसे जब बोलते हैं हम लोग, तो वो जस्ट क्या है. देखिए, when combined this makes it clear that the event was only short time prior. मतलब थोड़े से समय के लिए कोई चीज रह गई, ऐसे जब बोलते हैं, या कोई क्रिया हो चुकी है, तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. इट विल बी वेरी क्लियर विद दिस सेंटेंसेस. शी हैड जस्ट लेफ्ट द सीन व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्ड. मतलब जब एम्बुलेंस आई उससे पहले, उससे जस्ट थोड़ा पहले वो वहां से जा चुकी थी. द बस हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन वी गॉट टू द स्टॉप. मतलब हम लोग स्टॉप पे पहुंचे और उससे जस्ट थोड़ा ही पहले बस जा चुकी थी. ओके, देन यहाँ पे ये इन्फिनिटिव्स है, उसका पास्ट परफेक्ट और नेगेटिव कैसे होगा वो दिया हुआ है चार्ट. वो जस्ट मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. जैसे अभी है टू बी. टू बी का क्या होगा? हैड बीन पास्ट परफेक्ट में.
नेगेटिव, हैड के बाद नॉट आएगा तो हैड नॉट बीन। अभी टू हैव, मतलब आई वॉन्ट टू हैव अ केक, ऐसा अगर है तो उसका हैव का क्या होगा, यहाँ पे हैड होगा। यहाँ पे देखिए, तो एक सेंटेंस में 2 बार हैड आ सकता है पास्ट परफेक्ट में। मतलब काही पडते वक्त, म्हणजे कधी वाचताना किंवा कुठेतरी तुम्ही सेंटेन्स ऐकलं चुकून आणि त्याच्यामध्ये एकाच वेळी 2 वेळा हैड कसं आलं, एक ही सेंटेंस में 2 बार हैड क्यों आया। तो ये ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट का जो हैड होता है वो ओरिजिनल हैड है, और उसी सेंटेंस में अगर हैव दिया हुआ है और उसको चेंज करना है तो हैव का भी हैड ही होता है। तो एक सेंटेंस में 2 बार हैड आ सकता है। देन टू डू का डन होता है, से का सेड होता है, गेट का गॉटन होता है, गॉट भी रहता है। तो अमेरिकन इंग्लिश और थोड़ा ब्रिटिश इंग्लिश का प्रॉब्लम है। मेक का मेड होता है, गो का गॉन, टेक का टेकन, सी का सीन, कम का कम ही रहता है तीनों फॉर्म में, कम, केम, कम। देन ये चार्ट सिर्फ आपके, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपके रेफरेंस के लिए कि ऐसे पास्ट परफेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं। हमेशा हैड रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए क्या लिखा है। रीड द सिचुएशन एंड राइट द सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे मैंने 1 2 बार लिखा है, तो पहला 1 जो है वो सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल है, और नीचे वाले से आपको, नीचे वाले 1 से आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है। पहिला मैं पढ़ देती हूँ, पहिला मी वाचून दाखवते आणि कसं केलंय ते पण सांगते बघा। देयर वॉज अ पिक्चर लाइंग ऑन द फ्लोर, ये सिचुएशन है, और उसके आगे जो दिया है ब्रैकेट में, आपको क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है इट, फिर वर्ब दिया है फॉल, और ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स दिया है ऑफ द वॉल। ठीक आहे, आता तुम्हाला जे ब्रॅकेट मध्ये सेंटेन्स दिलेला आहे त्याला तुम्हाला पास्ट परफेक्ट मध्ये लिहायचंय। ओके, आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको यूज करके पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाना है। तो पहले सिचुएशन देखिए, मैंने जो सॉल्व किया उसमें क्या है, देयर वॉज अ पिक्चर लाइंग ऑन द फ्लोर, मतलब एक पिक्चर या कोई चित्र कहाँ पे पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ था। देयर वॉज, पड़ा हुआ था। तो सिचुएशन में क्या लिखा है, इट हैड फॉलन ऑफ द वॉल, वहां पे कैसे आया, वो दीवार से गिर के नीचे गिरा हुआ था या पड़ा हुआ था। ओके, तो पहले पहले क्या घटा, पहले वो दीवार से नीचे आया और फिर जमीन पे फैल गया या जमीन पे पड़ा रहा। समजते तुम्हाला सिच्युएशन, की एक चित्र किंवा पेंटिंग भिंतीवर होती, ती भिंतीवर ना खाली पडली आणि आता ती जमिनीवर पडून आहे। मग जमिनीवर पडून आहे ही दुसरी सिच्युएशन झाली। त्याच्या आधी काय घडलं होतं ते कशात लिहिणार आपण, पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये, आणि म्हणून इट हैड फॉलन ऑफ द वॉल असं लिहिलेलं आहे। आता एक एक सेंटेंस तुम्ही मला सॉल्व करून सांगायचंय। तो बर्नाली मैडम पिछले रीडिंग में रह गई थी, तो उनसे स्टार्ट करेंगे। पहला सेंटेंस सिचुएशन पढ़ेंगे आप, फिर ब्रैकेट वाला जो दिया हुआ है उससे आप क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस बनाएंगे। चलिए माइक शुरू कीजिए। The people sitting next to you on the plane were nervous. It was their first flight. They had not fly before. फ्लाई का क्या होगा, थर्ड फॉर्म, Flight, फ्लाइट नहीं होगा, फ्लाई, फ्ल्यू और फ्लोन होता है, flying, फ्लोन होता है, फ्लोन। ओके, flown. हाँ आप लोग, आप सभी लोग एक बार ये करना है। मैंने आपको पिछली बार शायद कुछ वर्ब्स दिए थे जिसका आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म दिया था,
तो आपको भी थोड़े कलेक्ट करने हैं और उसको हमेशा यूज करते रहना है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम, आपका फॉर्मेशन एकदम करेक्ट था। देन सेकेंड वाला मेनका मैडम आप पढ़िए। Yes, ma'am. You went back to your hometown recently after many years. It was not the same as before. It had changed a lot. यस, हैड आएगा और चेंज्ड ईडी आएगा। थैंक यू सो मच। थर्ड Yes, ma'am. सेंटेंस। Okay, ma'am. यस, या मैम। स्वाति मैडम, थर्ड सेंटेंस वाचा। Somebody sang a song. You did not know it. नो नो। Know it. हाँ। You did not know it. हम्म। आता ब्रॅकेट वाल्याचं तुम्हाला पास्ट परफेक्ट टेन्स करायचं। I हम्म। काय येणार आय नंतर? had हा, I had not हा। हिअरचं काय होणार थर्ड फॉर्म? हर्ड। heard. हा, I had uh, heard इट बिफोर, ते तसंच it. राहणार। या, Uh-huh. येस, थँक्यू सो मच। सुषमा मॅडम, फोर्थ सेंटेन्स वाचा। I met Samir last week. हम्म। I had not saw him सॉ for 5 years. नाही, सॉ झाला सेकंड फॉर्म, सी सॉ आणि थर्ड फॉर्म होणार सीन। ओके, See, सीन, I एस had not डबल एन। seen हा, him हिम for फॉर 5 years. 5 इयर्स। येस, त्यामुळे सगळ्यांनी थर्ड फॉर्म लर्न करायचेच आहेत, लक्षात ठेवायचंय। थँक्यू सो मच। देन मीनाक्षी मॅडम, फिफ्थ नंबर। Hello, ma'am. हा, 5 नंबर वाचा। Ajay played tennis yesterday. हम्म। He had never played before. व्हेरी गुड, थँक्यू। देन वर्षा मॅडम, नंबर 6। I offer my friends something to eat, but they weren't hungry. हा, They had just had lunch. येस, बघा इथे हॅड हॅड वापरला गेला। दे हॅड जस्ट हॅड लंच, म्हणजे मी तुम्हाला मगाशी जे दाखवलं की हे इथे टू हॅवचं हॅड हॅड होतं, ते बघा आता मॅडमने इथे वापरून पण दाखवलं आपल्याला। ओके, आय ऑफर्ड माय फ्रेंड समथिंग टू ईट बट दे वेरंट हंग्री, दे हॅड जस्ट हॅड लंच। व्हेरी गुड, थँक्यू सो मच मॅडम। देन 7 नंबर, कोण राहिले अजून बघूया आपण। नमिता मॅडम, नमिता मॅडम 7 नंबर वाचा। She last year Aparna went to Delhi. It was her first time there. She had not आता बी च काय होणार? she had not been there before. येस, शी हॅड नॉट बीन देअर बिफोर। व्हेरी गुड, बघा हे पण आपण वर बघितलं होतं, टू बी च हॅड बीन होतं पहिल्याच ह्याच्यात लिहिलंय। ठीक आहे, थँक्यू सो मच। सो I will give this thing
for your homework so that you can practice it. Other thing you have to practice is the verbs, action words. Okay, the first form, second form and third form. तुम्हाला जेवढे गोळा करता येतील, अब तक मैंने आपको जितने दिए हुए हैं वो सब लिख के लर्न करने हैं. उसके अलावा आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे. आपको सर्च करना है सिर्फ एक्शन वर्ड्स एंड देयर सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे करके भी आप लोग अगर सर्च करोगे तो बहुत सारे रेगुलर इरेग्युलर एक्शन वर्ड्स आपको मिल जाएंगे या वर्ब्स मिल जाएंगे जिनको आपको प्रॅक्टिस करना है. बघा, जेवढा शब्दसाठा जास्त असेल तेवढी तुम्हाला जास्त वाक्य बनवता येतील आणि तुम्हाला बनवता आले तर तुम्हाला बोलायला अजिबात अडचण येणार नाही. ठीक है, जितना आप वोकैबुलरी ज्यादा रखोगे, जितना वर्ड पावर ज्यादा रहेगा, उतना आप अच्छे से सेंटेंस बना सकते हो, उनको बोल सकते हो. ठीक है, तो टुडे विल स्टॉप हियर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस talk. Here we have completed with the perfect past tense. अभी टेंस का सिर्फ एक एक्स्ट्रा टाइप लेंगे हम लोग, दैट इज परफेक्ट फ्यूचर टेंस. और उसके बाद जो फोर्थ सब टाइप होता है वो हम लोग मोस्टली कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये 3 मेन टेंसेस है, सब टाइप से, जिसको हम लोग बोलते वक्त यूज करते हैं. ठीक है, so here we are ending with our session number 14. You all can leave the class now. Thank you so much. Good night everyone. Thank you, ma'am. Good night. Good night. मॅडम बोला. ते म्हणजे सेंटेन्स आहे ना, काय येत नाही ऍक्च्युली. टपट हाताला मार बसल्यामुळे. हा, मग यासाठी तुम्हाला मग ते मॅडम मग ते रेकॉर्डिंग करून हे केलं तर चालेल का? हो चालेल, तुम्ही रेकॉर्डिंग करून पण सेंड करू शकता. ओके, आणि टॉपिक पण असं मध्ये आधी केलं तर ग्रुपमध्येच करू का? हो ग्रुपमध्येच करायचंय, म्हणजे सगळ्यांना. सी, आपण जेव्हा तुम्ही काहीतरी टाकता तेव्हा बाकीच्यांना पण थोडं रिमाइंडर मिळतो की अरे हा एक हा होमवर्क होता किंवा असं काहीतरी आपल्याला पण करायचंय. आणि तुमच्या जेव्हा सगळ्यांचं व्यवस्थित होतं तेव्हा बाकीच्यांना त्याच्यातनं प्रेरणा पण मिळते, इन्स्पिरेशन मिळतं की नाही आपण पण हे करायला पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येकाने जे काही प्रॅक्टिस कराल, होमवर्क कराल तो प्लीज ग्रुपमध्येच पोस्ट करा. ओके, येस मॅडम, थँक्यू. बाय बाय, गुड नाईट. बाय बाय, गुड नाईट. मीटिंग यू सून. या, शुअर. बाय एव्हरीवन. गुड नाईट. गुड नाईट, बाय.